مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، رحمیار خان کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، آج 12 فروری 2026 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں ادارۃ الخیر میں موجود ہوں. میری دعا ہے رب کریم اس ادارے کو خیر کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی ہمارے ان دونوں عزیز مفتیان کرام علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصاً مولانا محمد راشد، مولانا محمد ساجد جنہوں نے اس گلشن کی بنیاد رکھی. ان کے بڑے بھائی حضرت قاری صاحب ہو گئے، ان کے والد مکرم، ان کے جملہ احبا، جملہ دوست جتنے حضرات ہیں، مولانا طیب صاحب ہو گئے، مولانا معاذ ہو گئے، جتنے حضرات ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان نوجوانوں نے اس جنگل کو منگل میں بدلا ہے. میں خدا کی قسم کھاؤں تو میں حانس نہیں ہوں، اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا خوشی سے. آپ کہتے ہیں 2 بچے صرف حافظ ہوئے، واہ! دارالعلوم دیوبند سے تم اس وقت ان کی ابتدا کے وقت سے آگے ہو. وہ تو ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا تھا، یہاں تو تم نے ماشاءاللہ 2 قرآن کے حافظ دیے ہیں. وہاں استاد ملا محمود ایک تھا، شاگرد شیخ الہند جسے کہتے ہیں محمود الحسن ایک تھا. وہاں ایک سے گنتی شروع ہوئی ہے، یہاں تو 2 سے ہوئی ہے. میری دعا ہے رب کریم اس کو مزید 4 چاند عطا فرمائے. اور صرف یوں نہیں ہے کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، میں دنیا گھومتا ہوں، 3 بر اعظم سے زائد میرے اسفار ہیں. میں نے آج تک کسی جلسہ فضیلت میں یوں نہیں دیکھا کہ ان کے ماں باپ کی دستار بندی کی جائے. یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے جہاں حفاظ کی دستار بندی تو ہوتی ہم نے دیکھی ہے، ایک شہزادے ادھر بیٹھے ہیں ایک ادھر بیٹھے ہیں، لیکن ان کے والدین کی بھی دستار بندی ہو، یہ کام تو ہم نے اللہ کا سنا تھا کہ رب ان کو کرائیں گے. اللہ رب العزت کے فضل سے آج ان کی دستار بندی بھی ان نے کرا دی ہے. یہ قابل تقلید کام ہے، یہ قابل فخر کام ہے، قابل افتخار کام ہے، اور اس کو آگے سرانا چاہیے. یہ بہت اچھا کام ہے. دوسری بات، آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں حفظ قرآن کے متعلق. قرآن جب بندہ پڑھتا ہے اس کا فائدہ انسان کی جان پر بھی ہوتا ہے، انسان کے ماں باپ پر بھی ہوتا ہے، اور انسان کے خاندان پر بھی ہوتا ہے. 3 فائدے ہیں، اپنے اوپر، والدین کے اوپر، خاندان کے اوپر. اور یہ تینوں فائدے ہمیں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اس زبان نے بتائے ہیں جس زبان پر 63 سال میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں. سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، مغرب سے ہی غروب ہوگا، مشرق سے طلوع ہوگا، لیکن حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. حافظ قرآن کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جامع ترمذی میں حدیث پاک کو لائے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو قیامت میں بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھ. یہ وہ لفظ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے حکم فرمایا، اقرا، اے حافظ قرآن، قرآن پڑھ. جب قرآن حافظ پڑھنا شروع کرے گا تو رب کریم فرمائیں گے ورتقع، تو صرف قرآن نہیں پڑھ رہا، تو جو قرآن پڑھ رہا ہے ایک درجہ تیرا جنت میں بلند ہو رہا ہے. ایک آیت پہ ایک درجہ، دوسری آیت پہ دوسرا درجہ، تیسری آیت پہ تیسرا درجہ. جب حافظ پڑھنا شروع کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے ورتل، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، آرام آرام سے پڑھ،
तरतील व तजवीद के साथ पढ़, उसूल व कवायद के साथ पढ़, कमा कुंत तुरत्तिलु फि दुनिया, जैसे दुनिया में तू खूबसूरत और तरतील के साथ पढ़ता था, लेकिन यहाँ जल्दी नहीं है। क्यों? फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने बताया, उसे कहा जाएगा जहां जहां तेरी आखिरी आयत पहुंचेगी वहीं वहीं तेरा आखिरी मकाम पहुंचेगा। 114 सूरतें, 540 रुकू, 120 पाओ, 86 मक्की, 28 मदनी सूरतें, 7 मनाजिल, 6500 से जायद कुरान की आयत। दुनिया में किसी को स्केल मिले ना, भाई 6ठे स्केल में है, 7वें में है, 10वें में है, 18वें में है, 21वें में है, 22 ग्रेड पर दुनिया की नौकरी खत्म। 22 ग्रेड बस, 23, 24, 25, 26 स्केल आज तक नहीं सुना। 22 ग्रेड सही, वाइस चांसलर तो गवर्नर बढ़ गया, पूरा खत्म। हाफिज़ कुरान को एक आयत पे एक स्केल मिल रहा है, 6500 स्केल, इससे भी जायद तो सिर्फ हाफिज के बनते हैं। जो हाफिज के बाद आलिम, आलिम के बाद मुफ्ती, मुफ्ती के बाद मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह, उसके रुतबे से कितने आगे होंगे। इसीलिए अल्लाह जज़ा खैर दे, मौलाना राशिद साहब को उसने बड़ा प्यारा जुमला बोला कि अल्लाह इन्हें मजीद आलिम बनने की भी तौफीक अता फरमाए। ये इशारा दिया है इनके माँ बाप को कि सिर्फ कुरान के हिफ्ज़ पर बस न करो, बल्कि इनको आगे भी चलाओ। आज आपके बच्चे आपको बता रहे हैं, अल्लाह ने हमें सूरतुल फातिहा में 7 आयत उतारी है, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू है, वलज़ालिन पे खत्म है। सूरत बकरा में 286 आयत उतारी है, अलिफ लाम मीम पे शुरू है, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन पे खत्म। ये एक एक सूरत के लफ्ज बता रहे हैं। तुम इन्हें आलिम बना लोगे, ये उन अल्फाज का मतलब भी बताएंगे, तर्जुमा और तशरीह भी बताएंगे। तो पहला फायदा हाफिज को है। उसका फायदा क्या है? इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, यूं इसे स्टेजेस मिलेंगे। हाफिज कुरान के माँ बाप का क्या फायदा है? उस सहाबी की बात पेश कर रहा हूँ जो सहाबी आपके यहाँ पड़ोस में दफन है। हुजूर इस्लाम के सहाबी हजरत मुआज़ जुहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। और मुआज़ जुहनी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में यहाँ तशरीफ लाए हैं। सक्कर में उनकी कब्र है, महबूब गोठ में। जब आप शिकारपुर की तरफ जाएं, सक्कर में पहुंचे, सक्कर से थोड़ा सा किलोमीटर आगे है, आजकल वहाँ एक होटल है मशहूर है सिंदरी, सिंदरी को क्रॉस करो तो आपके दाएं हाथ पे जब शिकारपुर की तरफ आपका मुंह हो, वहाँ मदरसा मौजूद है, दारुल हुदा, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हादी साहब का। उस मदरसे के साथ 3 कबूर हैं और वो तीनों पाक पैगंबर के सहाबा की हैं। एक हजरत अमर इब्न अख्तब है, एक हजरत अमर इब्न अबसा है, एक हजरत मुआज़ जुहनी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। इन तीनों की कबूर है। इसमें जो हजरत मुआज़ जुहनी है वो फरमाते हैं, मेरे पाक नबी ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान पढ़ा, माँ बाप ने उसे कुरान पढ़वाया। देखो, एक होता है खुद पढ़ना, एक होता है माँ बाप का पढ़वाना। कहा जी माँ बाप ने कुरान पढ़वाया तो माँ बाप को क्या एजाज मिलेगा? उल भी सवालिदा ताजा यौमल क़यामति ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। हैरान हो जाते हैं। अल्लाह, यकीन माने, मैं बाज़ों का एक चीज सोचता हूँ कि हाफिज कुरान को ये एजाज तो मिला, माँ बाप को एजाज क्यों मिल रहा है? माँ बाप के एजाज की क्या वजह? इसकी कई वजह हैं कि उनके दिल में अल्लाह के कुरान की कदर है, दीन की कदर है। लेकिन एक वजह बड़ी जबरदस्त मेरे जहन में है, वो ये है कि दुनिया ने ताने दिए होंगे कि तू पुत्र को मौलवी बढ़ा के क्या करे से, भुखा मर वैसी खासी कितों। उसने फिर भी सीना ठोक के अपने औलाद को आलिम हाफिज बनाया होगा, इसीलिए तो इनको ताज मिलेगा। उल भी सवालिदा हो ताजा, कहा हुजूर ने फरमाया इनके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। अच्छा, वो ताज क्या होगा? ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स, उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी का मतलब, देखो सूरज की रोशनी ऐसी है कि कमरे दी चोंड अंगूठी बंदा बैठा हुआ है तो वल भी बंदे को पता लग गया कि सूरज चढ़ा है। सही, तो सूरज की रोशनी से ज्यादा का क्या मतलब बताया जा रहा है? जिस वक्त माँ बाप के सर पे ताज सुल्तानी फिट होगा, ये आएगा, तो दुनिया वालों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये उस ताज की रोशनी है जिसने अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाया। अहसन मिन ज़ौइश शम्स, एक होते हसन, एक है अहसन, ज्यादा हसीन, इसमें तफजील,
इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। अहसन सबसे बड़ा लफ्ज है, अहसन, अजमल, अशरफ, अकरम, ये इसमें तफजील के लफ्ज हैं। तो फरमाया ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। अच्छा, अगला लफ्ज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा तवज्जो रखना, वो क्या है? फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा, फरमाया बताओ है लोगों, ऐसा कुरान पाक पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाला अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो, तुम्हें क्या ख्याल है, तुम्हें उसके ऊपर फख्र नहीं हो? अंदाज़ा। मैं यहाँ आज एक जुमला कहूँ, ये दो मासूमों ने कुरान हिफ्ज किया है इदारतुल खैर में, मौलवी राशिद की ज़ेरे निगरानी जो चल रहा है, अल्लाह इसको खुश रखे। ये दो बच्चों के हिफ्ज पर आज की इस महफिल में इस इलाके के लिए आखिरत के 4 ताज पक्के हो गए हैं। कितने ताज? एक ईंदी अब्बेद, एक ईंदी अम्मा, एक ईंदे अब्बेद, एक ईंदी अम्मा, कितने ताज हो गए? 4 ताज तो तुमने पक्के करा लिए। ये 4 वो ताज जिसके लिए सोने नबी आके हमें ईंदी रोशनी सूरज कुल वद हो सी, जिनके लिए हुजूर का फरमान है। आप मुझे बताएं, इस 4 ताजों के पक्का करने में जिस बंदे की मेहनत लगी, जिसका वक्त लगा, जिसकी सलाहियत लगी, जिसका माल लगा, जिसकी औलाद लगी, जिसकी जवानी लगी, और जिसने अपनी तमाम तरतीब को इन चीजों के लिए वक्फ कर दिया, क्या उनका कोई अजर नहीं होगा? उनका कोई कदर का, उनकी कोई मामला नहीं होगा। यार मैं एक बात समझाने के लिए कहता हूँ, बच्चों ने यहाँ पढ़ा है, अब तो सर्दी है, मैं यहाँ गर्मी में आया हूँ, यूं पसीना गिरता था हमारे माथे से, यूं। आपका इलाका तो बड़ा गर्म है गर्मी के मामला। इन बच्चों ने जिस जगह बैठ के कुरान पढ़ा होगा, क्या वहां किसी पंखे का, किसी ठंडक का इंतजाम नहीं होगा? क्या वहां लाइट नहीं चल रही होगी? क्या वहां बाकी तरतीबें नहीं होगी? होगी। तो जिसने वो तरतीब पूरी की होगी उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? उसको काम कुछ भी नहीं है। मैं उस दिन एक जगह गुफ्तगू कर रहा था, मैंने कहा मैं तुमसे कोई चंदे की अपील नहीं कर रहा, लेकिन एक जुमला कह रहा हूं, सुनो। तुम्हारी गैरत पे दस्तक दे रहा हूं, तुम्हारी गैरत पे, कि खुद तो हम कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं हैं। क्या अगर मेरी औलाद कुरान पढ़ने के लिए वक्फ हो जाए तो कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में सुरखरू नहीं हो जाऊंगा? अगर मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पास वक्त है, तो मैं मदरसे को वक्त दे दूं, ये वक्त मेरा क़यामत में कीमती नहीं हो जाएगा? सिर्फ पैसा देना कीमती नहीं है, पैसा भी है, जहां चंदा देते हो वहां बंदा भी दो। ऐसे नहीं है कि सहाबा कराम ने हुजूर पर माल लुटाए, माल भी लुटाए, जान भी लुटाए। हजरत अनस फरमाते, मुझे मेरी अम्मा हुजूर की खिदमत में लाई और फरमाया ये आपका खादिम है। का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल मैंने खिदमत की है। आप हदीस पाक की किताबों को कोई सफ़ा खोलें, 2 से 3 सफ़ों में ऐसा सफ़ा कोई नहीं मिलेगा जिसमें अनस अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना हो। तो इससे अंदाजा लगाएं कि इसमें अपनी जान भी लगानी होती है, माल भी लगाना होता है, वक्त भी लगानी होती है, अपनी औलाद भी लगानी होती है। हमें औलाद से प्यार जरूर है, ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में औलाद के लिए मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत बाद में है, हुजूर और दीन की मोहब्बत पहले है। मैं आपको माँ बाप से मोहब्बत और औलाद से मोहब्बत पे एक वाक़या अर्ज करता हूँ, फिर तीसरा फायदा बताता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े बेटे हैं अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, जब सहाबी नहीं बने थे, मुसलमान नहीं हुए थे, अभी कलमा नहीं पढ़ा था, तो ये काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे। जंगे बदर में हुजूर के मुकाबले पहुंचे थे। एक वक्त आया, ये जवान अपने अब्बा के सामने आ गया, हजरत अबू बकर के सामने हो गया, और ये वो वक्त था जब हजरत अबू बकर को उसने गिरा के ऊपर खंजर रख लिया। फिर अचानक याद आया कि भाई इस सीने पे पल के मैं जवान थी, इस गोद में पल के जवान हुआ, जो ही होवे अब्बा पीऊता है मैं ना, ये ख्याल आया, फौरन खंजर छोड़ा और उठ के खड़े हो गए, कुछ नहीं कहा। ये वाकया बेटे के दिमाग में भी नक्श हो गया, अब्बा के दिमाग में भी नक्श हो गया, लेकिन आई वजह ही थी गई। एक वक्त गुजर गया, अल्लाह ने कलमे की तौफीक दी, सहाबी बने बेटे, मुसलमान हुए, हुजूर के खादिम बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गले से लगाया, घर में रहे, शादी हुई, सब कुछ हुआ। एक मौके पे अब्बा और बेटा अबू बकर और ये अब्दुर्रहमान बैठ के खाना खा रहे, गपशप चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, बेतकल्लफी चल रही है। उस बातों में बेटे ने कहा, अब्बा जी वो आपको वक्त याद है? अबू बकर को 100% याद था, पूरा मामला याद था कि क्या हुआ था।
تو साले सो पुत्र इवें करे प्यो को भूल सी। हजरत सिद्दीक अकबर को याद था, फिर भी पूछा बेटा कौन सी बात? अब्बा जी वो मैं ताले सीने ते चढ़ के ते खंजर मारन लगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने यूं पूछा फिर छोड़ क्यों दिया था? वहां के सही मैं तेरी चाय बस अब्बा जी हिंद क्या हो जो भी है मैंने तो अब्बा समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक अकबर बहुत नरम मिजाज है लेकिन बड़ी गर्म तबीयत में जवाब दिया कि अब्दुर्रहमान बेटे वो तुम थे जिसने छोड़ दिया। अगर तुम मेरे काबू में आते और तुम्हारा मुकाबला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ होता और तुम यूं आते और मैं तेरे ऊपर बैठ जाता, आज ये जबान बोलने वाली तेरी मुंह में मौजूद न होती, तन वही होता और सर वही होता। ये अबू बकर का जवाब, जिसको अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर कहते हैं। अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, जो मैं खुतबे में हदीस पढ़ते हैं ना, क्या माना है कि दो तराजू लगा लो, तराजू के दो पलड़े रख लो, एक पलड़े में पूरी उम्मत की नरमियां शफकतें रहमतें एक तरफ रख लो और दूसरे पलड़े में अकेले अबू बकर की नरमी रख ले, ये उससे भारी हो जाएगा। ये अबू बकर कहता है कि पुत्र तू मैंने काबू न में आया जो तू आधा आज आला न सके। मेरे दोस्तों इससे अंदाजा लगाएं कि हमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत ज्यादा रखनी चाहिए या औलाद की मोहब्बत रखनी चाहिए। मेरा पहला बेटा, मेरी उससे पहले बेटी फौत हो गई। जब पहला बेटा हुआ, बड़ा हुआ, मैंने अपनी घरवाली को कहा कि औलाद पहली फौत हो गई, इससे प्यार करती हो, इस प्यार को दीन पे कुर्बान करेंगे, इसे हाफिज बनाएंगे। मेरे खानदान में हाफिज एक या दो है बस, मेरे खानदान में हाफिज नहीं है। अगर से उलमा हैं, हमारे दादा जान हाफिज थे, मेरे वालिद साहब, हमारे दादा जान कुरान के बहुत बड़े आलिम थे, हजरत वालिद साहब आलिम थे, शेखुल हदीस रहे, लेकिन मेरे 7 चचा अहले तशी हो गए, तो हमारा खानदान में हिफ्ज न मिला, हालांकि सिद्दीकी नस्ल है। तो मेरे अब्बा जी को बड़ी ख्वाहिश थी कि हिफ्ज कर लेना चाहिए, तो मैंने अपनी घरवाली को काम इसको हाफिज बनाया। आज अल्लाह का करम है, मेरे बेटे ने 15 पारे पूरे कर लिए। अल्लाह की कसम, दुनिया की दौलत लग जाए, इससे बड़ी खुशी जो बाप के सीने में आए ना वो नहीं हो सकती। क्या बात है, इस मोहब्बत को दीन पे लगाओ ना, कल क़यामत में रब्बे करीम के दरबार में ये कह पाए कि अल्लाह हमने औलाद जैसी मोहब्बत की चीज भी आपके कुरान पे कुर्बान कर। मेरे दोस्तों आप जितने बैठे हो, ये बात तय करो कि अगर अल्लाह के कुरान की हिफाजत में मेरी नस्ल लग जाए, ये सौदा सस्ता है या महंगा है? बोलिए बोलिए। या आपने उलमाए कराम को कुर्सियां दी हैं, मेरे लिए आपने सबसे बड़ी कुर्सी लगाई है। क्यों? मैंने मुंह तो बोल बैठी है, पीपट बैठे बड़ी माँ तो पुत्रा। क्यों? एक ही वजह है कि हमारा नाम कुरान और दीन के साथ जुड़ा है। जब दुनिया में आपकी औलाद की इज्जत होगी तो आखिरत में तो इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे। मेरे दोस्तों इसलिए तय करो। तीसरा फायदा हाफिज कुरान के खानदान को है। वो तीसरा फायदा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, रावी हजरत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत अली कोई आम बंदा नहीं है, हुजूर के घर का बंदा है, हुजूर पाक के दामाद है, नबी पाक की चौथी और चहीती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के शौहर हैं। बल्कि मैं यूं कहूं, अली उन बच्चों का अब्बा है जो बच्चे जन्नत के सरदार हैं। अली उस खातून का शौहर है जो खातून जन्नती खातूनों की सरदार है। हजरत अली फरमाते हैं, मुस्नद अहमद में रिवायत है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह लाए हैं कि हुजूर पाक ने फरमाया, हजरत अली ने नकल फरमाया, मन क़रा अल कुरआन व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु मिन अहली बैती अशरा कुल्लुहुम वजबत अलैहि नार औ कमा क़ाल अलैहि। फरमाया हुजूर पाक ने, जिसने कुरान पढ़ा, हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, अल्लाह इसे तो यकीनन जन्नत देंगे, लेकिन इसके खानदान में से वो 10 बंदे जिन पे जहन्नम हराम हो चुकी होगी, हाफिज सिफारिश करता जाएगा, रब उनको जन्नत देता जाएगा। कितने बंदे? कितने बंदे? आज तुमने इस मजलिस में 20 बंदे जहन्नम से छुड़ा लिए हैं। कितने छुड़ाए हैं? आप कह रहे हैं 2, ये कम है, छोटी चीज है, 2 बंदे हाफिज हुए, और 2 नहीं देख रहे, 4 ताजे सुल्तानी मिले हैं और 20 अफराद जहन्नम से बरी हो गए हैं। ये उस जबान ने बताया है जिस जबान पे कभी झूठ आया ही नहीं। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात।
कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार, जिनका नाम जहन्नम के रजिस्टर में लिखा जा चुका होगा वो डिलीट थी गया उतो नाम से। क्यों? हाफिज कुरान सिफारिश करे। तो तीन फायदे। पहला फायदा मैंने बताया, इसका अपना स्केल और दर्जात मिलेंगे। दूसरा, माँ बाप को ताज सुल्तानी मिलेगा। तीसरा, खानदान को कि एक हाफिज की वजह से 10 बंदा जहन्नम से बच जाएगा। आलिम के लिए तो फिर 70 है, शहीद के लिए फिर 700, और पूरी तफसील है। एक एक बंदे की वजह से कितने कितने बंदे जहन्नम से जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी जो शफाअत होगी वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हम सबको शफाअत अता फरमाए। कहते हैं नबी पाक की सिफारिश तो फिर अर्फ़ आखिर होगा। सही मुस्लिम में नबी पाक सर सजदे में रखेंगे, रब का ऐलान होगा, इरफा रासक सल तोता वशफा तुशफ़ा, महबूब मुस्तफा सर उठाइए, सवाल कीजिए, पूरा किया जाएगा, सिफारिश कीजिए, तस्लीम की जाएगी, मानी जाएगी। इससे बड़ी बात क्या मेरे दोस्तों? ये एक एक चीज का सिफारिश है। तो क्यों अपने घर में सिफारिशी पैदा नहीं करनी चाहिए हमें? अगर मेरे घर एक सिफारिशी है तो 10 बंदे जन्नत गिनवा दे हो, मैं को 10 कम औख है? बताएं, बोलते नहीं है भाई। मैंने आज के दिन में कोई 1000 किलोमीटर से ज्यादा सफर करना है, थकना तो मुझे चाहिए। तो जितना लंबा सफर करके मैं आया बैठा, मैं को पता है मैं इंडिया की एक सरहद से निकल के दूसरी तरफ आके बैठा हूँ, इतना लंबा मैं सफर करके आया। थकना मुझे चाहिए, मेरी आवाज आप सबसे ऊंची है, तो सर रल के मैं को जवाब नहीं देंगे। बताइए सौदा सस्ता है या महंगा है? तो मेरे दोस्तों आज सस्ता है, खुदा दी जन्नत सस्ती थी खड़ी है, तो क्यों अपनी औलाद को इतना न भेजो? क्यों अपनी औलाद को यहाँ न भेजो? वजह क्या है? अजीब मामला है। आजकल कोई आलिम दीन का काम करे तो या तो ये एतराज होता है भी दहशत गर्द सही, ऐसी दहशत गर्दी सिखा दे। हालांकि इतनी दहशत गर्दी थी ये मुल्क दे विच, ओ बलोचिस्तान तो चाह के तरलाई इस्लामाबाद तक कहीं हिक जाते कह मदरसे दा फाजिल को नहीं सही, कहीं हिक जाते मौलवी को नहीं, हाफिज को नहीं, आलिम को नहीं, कारी को नहीं, मुफ्ती को नहीं, मुहद्दिस को नहीं। ये सारे डू नंबरियां दा काम है। ते वाली मौलवी ने सिर मारी करो तो भेड़ा दे कन बकरियां को, बकरियां दे कन भेड़ा को। अजीब मामला है। उलमा पहला तो इल्जाम लेसन, अगर वो मौलवी ये साबित कर दे हम दहशतगर्द नहीं है, पर दूसरा इल्जाम भी लेसन सही इन्हें को तो गैर मुल्की फंडिंग थी सही, बाहरों पैसा आंदा ने, इन्हें को तो फिलहाल जा तो मिलता पिया इतू ते उतू। मुझे एक आदमी ने एक दिन कहा भी सही तो आपको अमेरिका पैसा देता है। मैं क्या अमेरिका खोती को हाथ लाया पैसा मैं को देता भी, मैं तो कुरान पढ़े ना बैठा, मैं तो बंदे तैयार बैठा करना भी दहशतगर्द है, वो इसराइल का मददगार है, वो बेईमान है, इस्लाम निकाल करो नबी दी पैसा मैं को दे दे। चेते को हाथ ला, दिमाग खराब है भी। तू 2 रुपए दे के मौलवी नाल तावन नहीं कर सकता तो उनका कूड़ तो ना मारना। अच्छी फिर इल्जामात शुरू हो जाते हैं, फिर ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया। मैं इस मदरसे की बात करूं, ये मेरे मामले में सामने बैठे हैं, इनका मदरसा शुरू कैसे हुआ, यहाँ पैसा लगे कैसे, किस दोस्त ने 2 रुपए दिए, किसने 100 रुपए दिए, ये मेरी मशवरे के साथ, मेरी मालूमात के साथ। जब जगह बन रही थी तो भाई राशिद और भाई साजिद ने मुझे कहा उस्ताद जी आप ये लिख के दे सकते हैं कि ये हमारे शागिर्द है और आलिम है, ये दीन का काम करेंगे। मैं जी पुत्र क्यों ना लिख ले? तो लिख ले। ये उस वक्त की बात है, यहाँ एक ईंट भी नहीं लगी। मैं तो उस दिन से मामलात जानता हूँ। मुझे आज कोई बता रहा है इतना जितना समझते पे से तुम्हारू पैसा आद है, मैं मेरा पुत्र है, मैं समझ मेरा आप बड़ा इदारा है, मैं को पता है तो अक्सर बारू पैसा आद है, कोई अक्सी एजेंसियां दे दें कहा कि अमेरिका देते तय को दे जाना। यार जो बंदा बात और काम करेगा ना उस पे इल्जामात लगेंगे। मैं इन दोनों को कहता हूँ अपना सीना बड़ा कर लो इस इल्जामात के सहने के लिए। जो मर्जी आए बंदे के ऊपर इल्जामात लोग लगाते हैं। इल्जाम हमेशा वो लेंदे जो खुद काम नहीं करना, जो खुद नहीं करना ना वो अलावन वास्ते तैयार हो सी। वो अदर निकम्मा सारे को ज्यादा थका हुआ होता है। तो पता है काम कार वाला बंदा तो सोचा चुस्त तैयार बैठा एक करो एक निकम्मा रोज थकमा सही, मैं तो थका पिया आलसी पिया सही, इमामुल मुगफ्फलिन सैयदुल काफिलिन बढ़ के बैठा, बिल्कुल मैं को कोई अता पता कोई नहीं। तो भाई आप काम करेंगे जो मर्जी आए बात करें करते रहे, इल्जामात से पीछे ना हटे। सराय की एक मिसाल है, पीछू दे मारो खुद चाहे, जो मर्जी वजह करना करे, जिसने जो कहना कह दे। हम किसके पाबंद थोड़ी हैं। हम जो दीन के लिए रखेंगे औलाद भी लगाएंगे, जान भी लगाएंगे, माल भी लगाएंगे, और इंशाअल्लाह जिसका पैसा दीन के लिए चलेगा वो दीन के लिए कबूल होगा तो आएगा, जिसकी औलाद दीन के लिए कबूल होगी तो आएगी, जिसकी सलाहियत होगी दीन के लिए होगी तब आएगी, वरना अल्लाह ताला यूं मक्की की तरह उठाकर बाहर फेंक लेगा। दुआ करे बंदा उस वक्त से कि अल्लाह जल्ला शानू हमें दीन से महरूम न कर। आप जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं आप सबको मुबारकबाद हो कि आप माशाअल्लाह इस दीन के महफिल में बैठे हैं।
بہترین جگہ بیٹھے ہیں، آپ ان کے دست و بازو بنے اور اس ادارۃ الخیر کو واقعی خیر کا ذریعہ بنائیں۔ یہ آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں اور بچوں کو یہاں پڑھانے کے ساتھ، اور کچھ نہیں تو کم از کم دعاؤں کے ساتھ چلیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کا تعاون نہیں کر سکتا، اس کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دعا تو کر سکتا ہے، کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تو اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ کیا یہ روایات میں نہیں ہے کہ جب بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اسے ایک دعا مل جاتی ہے قبول ہونے والی، جو چاہے مانگ لے؟ کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ کے بندہ مانگے اللہ سے، یا میں نے کل یہ شے وہ ٹھیک ہے، کوئی نہیں میں نے کل میں دی حیثیت کوئی نہ، میں دعا تو کر سکتا اللہ انہاں دی مدد کر سکتا، اللہ انہاں کو غیب عطا فرما، اللہ ان کے لیے کوئی اور ذریعہ بنا دے، اللہ یہاں بچے اور بچوں، یہ دیکھو جتنے بچے بیٹھے ہیں، یہ میرے خیال میں سفید کپڑوں والے بچے طالب علم ہیں، یہ جڑے بیٹھے نا، انہاں دے پیو ماں دے دل دین دی عظمت کونی ہے تو انہاں بھیجا کیوں ہے؟ ایسا بندہ نظریہ پیش۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا، آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اپنی اولاد کو اس طرح بناؤ اور پھر دیکھو فائدہ۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا، اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے، اللہ معاف کہنا، پیو فوت تھی وجہ، ماں فوت تھی وجہ، انتقال ہو جائے اور اس کی کال، وہ اگر غیر ملک بیٹھا ہو، اس کی کال یہاں کسی اسکول کے پرنسپل کو نہیں آئے گی، کسی کالج کے پرنسپل کو کال نہیں جائے گی کہ حضرات بچوں کو کہو معاشرتی علوم کی تلاوت کر لیں، سائنس پڑھ لیں، فزکس پڑھ لیں، کیمسٹری پڑھ لیں، بیالوجی پڑھ لیں، میرا ابا قبر بخشا بھیجے، ان فون ویسے ہی تھے سکول دسو بھائی، کالج یونیورسٹی ٹیوشن سینٹر، کیوں بھائی؟ سارے آدم یہ مولی راشد دے مدرسے تے قرآن پڑھی نہ پیا، اگر پیو ماں کو کسے بھیجے تو کہ مولوی کو آکسو، قاری کو آکسو، حافظ کو آکسو، عالم کو آکسو، او پڑھ کے بھیجے سی۔ تو بھئی جب آپ کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن دنیا کو چیر کے قبر تک جاتا ہے تو پھر کیوں اپنی اولاد کو نہیں پڑھاتے ہیں؟ میں اسکول کالج منع نہیں کریں گا، صحیح میں پڑھا الحمدللہ ٹاپ کر کے پڑھا، گولڈ میڈل گھن کے پڑھا، لیکن این وجہ تو نہیں پڑھا جو ایسا منہ چمبا کر کے پیپل کو پھیپا لا کے انگریزی پڑھے بیٹھے۔ ہاں اس لیے پڑھی ہے کہ یہ زبان سیکھ کر اللہ کے قرآن کو جا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ تم بھی ایمان والے بن جاؤ۔ اس بنیاد پہ نہیں پڑھی کہ ہم اس پہ فخر کریں گے، ہاں جس بنیاد پر میں اللہ کا شکر کروں گا وہ اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اس کو پڑھنے پہ فائدہ ہے، اس کو پڑھنے پہ فائدہ ہے بھائیو۔ اس لیے اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ اور اس کے بعد ان کو حدیث پڑھاؤ، عالم اور حافظ بناؤ گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سارے ارادہ کرتے ہیں، چلو گے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے تیار کرو گے، دعائیں کرو گے؟ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔